Hello students, this is Kanika. Welcome to my channel Prep Biology. So today in this video we are going to discuss some case-based questions from your unit 2 of class 12th biology, that is the genetics and evolution. Okay, so these all are the case-based questions including your PYQs from your class 12th board exams, which are very important for your 2025 boards exams. Let's start with the questions. Our first question is the case study, that is case based question. Gene express itself in a cell system as a protein enzyme. How does an expression of gene occur in a cell system and why does it need to be occur? And how the gene's expression is regulated in prokaryote cell system. Combined effort to the Jack Monod, biochemist, and Francois Jacob, geneticist, for their work on the lactose metabolism in E. coli. So you have the paragraph related to the lac operon. So you have some questions related to lac operon system. Okay. So your first question is, why is lac operon said to be transcriptionally regulated system? So why it is required? Why is lac operon said to be transcriptionally regulated system? Because we know that lac operon, beta, I hope you all know about the lac operon, that is the gene regulation system in the eukaryotes as well as the prokaryotes. तो lac operon, अगर हम lac operon का briefly देखें तो हमें पता है lac operon is basically a segment of DNA, okay. लैक का मतलब है लैक्टोज विच इज अ शुगर, ठीक है जी. तो हमारे पास दो तरह की कंडीशंस हम पढ़ते हैं इसमें, ठीक है. तो लैक ओपरॉन विच इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंसिस्ट ऑफ प्रोमोटर, रेगुलेटरी जीन एंड द ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है जी. स्ट्रक्चरल जीन्स की बात करें तो हमारे पास Z, Y and A are the three structural genes are present. So this is the regulatory gene, this is the promoter, this is the operator and these three are the structural gene. Okay, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है बेटा, so why is lac operon said to be transcriptionally regulated system? Because we know that द लैक ओपरॉन, अगर हम लैक ओपरॉन की बात करें तो ये क्या रेगुलेट करता है? इट कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को रेगुलेट करता है. ये ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द आरएनए फ्रॉम द डीएनए. डीएनए से आरएनए के प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है. सो इट कंट्रोल्स द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम द डीएनए दैट इन्वॉल्व्स इन the lactose metabolism, ठीक है जी, ठीक है. So here the lactose act as an inducer which shows the on and off condition of the operon. Okay, so this is the answer. Next question आता है, it is said that the lac operon has to be operational at a very low लेवल इन द बैक्टीरियल सेल ऑल द टाइम. तो क्वेश्चन कहता है कि लैक ओपरॉन, अगर हम लो लेवल की बात करें, अगर हम लो लेवल की बात करते हैं बैक्टीरियाज में, तो ये जो लैक ओपरॉन है हमेशा ही लो लेवल पे ऑन रहता है. ऐसा क्यों? तो आपका आंसर बेटा आएगा, अगर हम लैक ओपरॉन की बात करते हैं तो हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं स्ट्रक्चरल जीन से, जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं, मतलब जो दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसक्रिप्शन से ट्रांसलेशन होती है, ठीक है. Z स्ट्रक्चरल जीन Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y बनाता है परमीज एंड A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है. सो दीज आर द प्रोटीन्स. सो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है? ये करता है लैक्टोज को चेंज करेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में. दीज आर ऑल्सो शुगर्स जो कि प्रोवाइड करती हैं क्या? एनर्जी फॉर द बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि ग्रोथ में हेल्प करती है बैक्टीरिया के. परमीएज क्या करेगा? परमीएज हेल्प करेगा किसको एंटर करने में?
लैक्टोज को एंटर करने में सेल में। तो इट अलाउज द लैक्टोज टू एंटर इनटू द सेल। ओके, परमिएबल बनाएगा मेम्ब्रेन को, जो तो करके जो हमारे पास लैक्टोज है वो इजीली एंटर हो जाए सेल में। तो इसके लिए हमारे पास थोड़े अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज, मतलब लोअर लेवल ऑफ लैक्टोज हमारे पास ओन होना ही चाहिए, सो दैट लैक्टोज इजीली एंटर इनटू द सेल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसलेशन। ओके, तो हमारा आंसर आता है इसका, it is said that the lac operon has to be operationally at a very low level in the bacterial cell all the time, because if it is not if it is not on, if lactose is not there for at a low level in the cell, so lactose the lactose cannot enter into the cell। ठीक है, ठीक है। तो लो लेवल इन द बैक्टीरियल सेल हमारे पास लैक ओपरन ओन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमें परमिएज की रिक्वायरमेंट रहेगी ही रहेगी फॉर द एंट्री ऑफ द लैक्टोज। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाई इज रेगुलेटर जीन इन लैक ओपरन मार्क्ड एज आई जीन। आई जीन को रेगुलेटर जीन को आई जीन क्यों मार्क करते हैं? क्योंकि हमें पता है रेगुलेटर जीन को इनहिबिटरी जीन भी कहा जाता है। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिटरी जीन which code for the repressor। ठीक है जी, ठीक है। रेगुलेटरी जीन हमें पता है, यहाँ पे आई है, आई विच कोड फॉर द रिप्रेसर, इनहिबिटरी जीन बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द लैक ओपरन इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो आपके पास ये दो स्ट्रक्चर्स बने हैं जो कि शो कर रहे हैं absence and presence of inducer। okay, so you have two structures, you have two modes, that is in the absence of lactose or inducer, or in the presence of inducer। so if the lactose is absent, so what happens is the repressor mRNA form, and the repressor will bind on the site of the operator gene। okay, so the transcription and translation are in off condition। okay, lac operon is in off condition। अगर present है तो क्या होगा, इस रिप्रेसर पे बाइंड कर जाएगा इंड्यूसर, दैट इज लैक्टोज। फिर जो ऑपरेटर जीन है वो हम आपकी फंक्शनिंग करेगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करेगा, और फिर ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन से हमारे पास ये प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द ऑफ कंडीशन, एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, दिस इज द ऑन कंडीशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 2, the chromosome number is fixed for all normal organisms leading to species specification, whereas any abnormality in the chromosomes number of an organism result into the abnormal individuals। for example, in human 46 chromosome, the fixed number of chromosomes both in males and females, in male 44 plus XY and females 44 plus XX। the human male is heterogametic, that is XY, in other words produce two different types of gametes, that is 22 plus X chromosomes and other is 22 plus Y chromosomes respectively। human female on the other hand is homogametic, produce only one type of the 22 plus X chromosomes only। so sometimes errors may occur during the meiosis of the cell to segregate, called the non-disjunction, leading to the production of abnormal gametes। so this paragraph is from your abnormalities, Mendelian diseases, okay, and the chromosomal diseases। so you have first question, state what is aneuploidy। so we know that what is aneuploidy? Aneuploidy is the failure of the segregation during the meiosis, okay, segregation of the chromatids during meiosis
सो व्हाट हैपेंस एनिकुलॉइडी, जब जो क्रोमोसोम्स हैं मियोसिस के टाइम, सेल डिवीजन के टाइम सेग्रीगेट नहीं होते या एबनॉर्मल सेग्रीगेशन होती है, तो इनके पास, हमारे पास या तो गेन होता है क्रोमोसोम का, गेन ऑफ क्रोमोसोम, या लॉस ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, या तो क्रोमोसोम ऐड होंगे या क्रोमोसोम सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है जी, दिस इज द एनिकुलॉइडी। नेक्स्ट इज इफ during the spermatogenesis, sperm formation, the chromatids of the sex chromosomes fail to segregate during meiosis. अगर sperm formation के टाइम जो क्रोमोसोम chromatids हैं वो segregate नहीं होते हैं proper, right, only the different types of gametes with altered chromosomes number could possibly be produced. अगर नहीं होते हैं तो due to the non segregation of the sex chromosome, the produced will be 22 plus O एक बनेगा और एक बनेगा 22 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ओके। सो दीज आर द पॉसिबिलिटी व्हेन ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, ड्यू टू द नॉन सेग्रीगेशन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम ड्यूरिंग द स्पर्मेटोजेनेसिस, दे प्रोड्यूस दीज काइंड ऑफ गैमीट्स। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी आती है गैमीट्स बनाने की, क्योंकि हमें पता है कि दो तरह के द मेल्स आता हिट्रोगैमेटिक, दो तरह के बनेंगे 22 प्लस एक्स एंड 22 प्लस वाई। तो अगर हम नॉन सेग्रीगेशन हो गई तो एक में ही एक्स वाई होगा और दूसरे में कुछ नहीं होगा, ओनली ऑटोसोम्स आर देयर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म 22 प्लस वाई फर्टिलाइज विद एग 22 प्लस एक्स एक्स। ठीक है जी, तो अगर हमारे पास कंडीशन दे रखी है, अगर हमारे पास 22 प्लस वाई का स्पर्म है जो कि फर्टिलाइज होगा 22 प्लस एक्स एक्स के कैरियोटाइप से, तो नेम द डिसऑर्डर। तो अगर एक्स एक्स होगा तो हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, 22 ऑटोसोम्स है और एक्स एक्स फीमेल से और वाई हमारे पास आया मेल से। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो गए, यहाँ पे क्रोमोसोम्स बढ़ गए, तो मतलब ये हमने कंडीशन कहाँ पढ़ी थी, दिस इज द कंडीशन ऑफ क्लाइनफिल्टर डिजीज। ओके जी, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्लाइनफिल्टर डिजीज। ठीक है जी, तो अगर हम इसके क्लाइनफेल्टर डिजीज के सिम्टम्स पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि स्टेराइल मेल विद अनडेवलप्ड टेस्टिस, जो टेस्टिस होंगे वो अनडेवलप्ड होंगे, अनडेवलप्ड टेस्टिस। एंड सेकंड इज मस्कुलिन डेवलपमेंट, ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट बट द फेमिनिन डेवलपमेंट इज सीन। ठीक है, तो कुछ ना कुछ उन मेल्स में फेमिनिन डेवलपमेंट, फेमिनिन फीचर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो एबनॉर्मेलिटीज है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की जितनी भी डिजीजेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन इज नेम अ बेस्ट नोन एंड मोस्ट कॉमन ऑटोसोमल एनिपुलॉइड एबनॉर्मेलिटी। तो आपको पता होना चाहिए ऑटोसोमल एनिपुलॉइडी में हमने एक एबनॉर्मेलिटी पढ़ी थी, दैट इज द डाउन्स सिंड्रोम दैट इज ड्यू टू द ट्राइजोमी होती है कौन से क्रोमोसोम पे, 21st क्रोमोसोम पे ट्राइजोमी होती है। ठीक है, तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर एग्जांपल ऑफ ऑटोसोमल एनिपुलॉइडी एबनॉर्मेलिटी। तो हमारे पास जो सिम्टम्स आ जाते हैं, शॉर्ट ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक्स पामल क्रीज है। ठीक है, शॉर्ट स्टैचर होगा, शॉर्ट स्टैचर एंड हैविंग द मेंटल रिटार्डेशन होगी, रिटार्डेशन। ओके, सो all diseases, their symptoms, their chromosomal pattern is very very important. Okay, the next case study is from your Michelson and Stoll experiment provided a strong experimental evidence to prove that the template mechanism of DNA replication given Watson and Crick. They used heavy, that is N15, and light, that is N14 isotopes of the nitrogen to differentiate between the parental and newly synthesized DNA. The experiment and the results are diagrammatically shown. So you have this diagrammatically representation of the experiment. So the first question is, what does the given experiment show? So we know that Michelson and Stoll experiment is for the semi-conservative nature of DNA replication.
ओके सो हमें पता है कि जो मिसेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट ने प्रूव करा था कि डीएनए जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसका नेचर किस तरह का है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर है. सो व्हाट डज द गिवन एक्सपेरिमेंट शो? दैट द शोन डीएनए रेप्लिकेशन इज said to be the semi conservative, as after the completion of replication each DNA will form one strand is of parental type and one strand is of newly formed. ठीक है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैक्टीरिया आर यूज इन द अबव एक्सपेरिमेंट. तो कौन सा बैक्टीरिया इन्होंने यूज करा था? द बैक्टीरिया इज द ई कोलाई. ई कोलाई इन्होंने यूज करा था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए. बी क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ N15 रेशियो N14 डीएनए स्ट्रैंड्स इन ई कोलाई एक्सट्रैक्टेड डीएनए आफ्टर जनरेशन 2. तो हमारे पास ये ओरिजिनल डीएनए है, ये फर्स्ट जनरेशन के डीएनए हैं एंड ये सेकंड जनरेशन के डीएनए हैं. तो हमारे पास इस क्वेश्चन में पूछा है सेकंड जनरेशन के डीएनए के रेशियोज बताओ, N15 रेशियो N14. तो हमें पता है जो लाइट बैंड्स है मतलब N14 है वो हमारे पास कितने बने थे, 75% हैं, और N15 के जो हमारे पास है वो 25% है. तो हमारे पास 1:3 के रेशो में हमारे पास ये बैंड्स आते हैं आफ्टर जनरेशन 2. ठीक है, N15 1 एंड N14 3, 1:3. Next question is, in E. coli is allowed to grow in N15 medium for 20 minutes. मतलब अगर N15 मीडियम में इन्होंने 20 मिनट्स लगाए E. coli को ग्रो करने में एंड N14 के लिए इन्होंने 40 मिनट्स लगाए. ठीक है, मतलब डबल टाइम लगाया फॉर द E. coli ग्रोथ. What will be the number of the hybrid and the light double स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट. तो इसमें आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड एंड लाइट डबल स्ट्रैंड्स बने. तो हमें पता है अगर हम लाइट स्ट्रैंड्स की बात करें तो हमारे पास 6 लाइट बैंड्स बने. ठीक है, 6 लाइट बैंड्स बने, मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6. ठीक है, 6 लाइट बैंड्स दैट इज N14 मीडियम के बैंड्स बने. और अगर हम बात करते हैं हाइब्रिड्स की तो हमारे पास कितने बैंड्स बने हैं, 2 बैंड्स बने. ठीक है, तो कितने की कितनी रेशो हो गई, लाइट बैंड्स की बात करें तो 6 लाइट डबल स्ट्रैंड बैंड्स बने और हाइब्रिड्स की बात करें तो 2 हाइब्रिड डबल स्ट्रैंड्स बनते हैं. ठीक है जी, तो दिस इज द आंसर. सो इस तरह के बेटा क्वेश्चंस आपको प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछेंगे केस स्टडीज. तो आपको ये जो पैराग्राफ है ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा होता है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि इस पैराग्राफ का पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है. ठीक है, द नेक्स्ट केस स्टडी दैट इज the DNA is the genetic material came from the experiment Alfred Hershey and Martha Chase. So in this case study they are talking about the Hershey and Chase experiment. So the experiment were designed to ascertain whether it was a protein or DNA from the virus that entered the bacteria. Radioactive elements were used to label DNA and proteins. So you have the first question is, why were viruses grown in a medium containing radioactive phosphorus? So we know that in the Hershey and Chase experiment, the bacteriophages are used that infect the E. coli. ठीक है, bacteriophage are used that infect the E. coli, and the bacteriophage, some of the viruses are grown in the sulfur 35 radioactive isotope and some of the bacteriophage have grown in phosphorus 32 radioactive isotope and they infect the E. coli bacterium. ठीक है जी, अब बात आती है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि why were viruses grown in medium containing radioactive phosphorus. तो radioactive phosphorus को बैक्टीरिया क्यों ग्रो करा गया, क्योंकि हमें पता है जो फोस्फोरस है डीएनए की बात करें, हमने डीएनए और प्रोटीन में से देखना है कि कौन सा इन दोनों में से मटेरियल है जो कि नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है. तो डीएनए के लिए हमने उसको किस रेडियोएक्टिव से लेबल करा, दैट इज द phosphorus 32 बिकॉज द डीएनए कंटेन phosphorus इन इट्स स्ट्रक्चर. ओके जी, next question is, what happened when viruses were grown in medium containing radioactive sulfur. ठीक है, तो आपको बताना है कि जब वायरसेस जो ग्रो करे गए रेडियोएक्टिव सल्फर में, तो
क्या हुआ। तो अगर हम कंडीशन की बात करें, सल्फर की कंडीशन की बात करें, तो हमने देखा कि इन द एंड रिजल्ट में नो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन द सेल्स। जो टेस्ट ट्यूब के पैलेट में हमारे पास कोई भी रेडियो एक्टिव सेल नहीं मिला, मतलब रेडियो एक्टिव सल्फर 35 नहीं मिला, बट इट इज प्रेजेंट ओनली इन द सुपरनेटेंट। सल्फर हमें सिर्फ और सिर्फ सुपरनेटेंट में मिला। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास सेल्स हैं पैलेट में, उसमें जो सल्फर 35 नहीं मिला, सल्फर 35 कोटेड नहीं मिला, मतलब जो प्रोटीन है वो नेक्स्ट मटेरियल में, नेक्स्ट सेल में ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये होता है कि डीएनए इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर बैक्टीरियोफेज एंड ई कोलाई यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट। तो ई कोलाई और बैक्टीरियोफेज क्यों यूज किए गए हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट में? क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है बेटा, बैक्टीरियोफेज है वो वायरसेस हैं, ठीक है, वायरसेस हैं। अब इन वायरसेस, ये जो वायरसेस हैं, दे इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया कौन सा यूज करा? ई कोलाई, ठीक है। द वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया that are called the bacteriophage. That's why they are used in the experiment. Next question is write the conclusion of the Hershey and Chase experiment. तो conclusion क्या होता है Hershey and Chase experiment का बेटा? After the infection, blending and centrifugation, the end product, we have the two end product, ठीक है। एक ही टेस्ट ट्यूब के पैलेट में, मतलब सल्फर 35 के टेस्ट ट्यूब के पैलेट में हमें मिला कि हमें कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं मिला, ओनली सुपरनेटेंट में प्रेजेंट था। बट अगर हम बात करें फॉस्फोरस 32, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 के बैक्टीरियाज में, तो हमें जो पैलेट में मतलब सेल्स में हमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 प्रेजेंट मिलता है और सुपरनेटेंट में नहीं होता प्रेजेंट। तो इसका मतलब है जो डीएनए है वो ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। मतलब द बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद द वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव phosphorus 32 were radio labeled radioactive. That indicates that DNA was the material that passed from virus to बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमारा एंड रिजल्ट होता है, ठीक है जी। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज अ ब्लेंडर यूज्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो हमें पता है 3 स्टेप्स में हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट था। तो उन्होंने बोला कि ब्लेंडिंग का क्या पर्पस है इस एक्सपेरिमेंट में। हमने पढ़ा है कि जो ब्लेंडिंग से क्या होता है, जो ये वायरल कोड्स हैं, ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो वायरल कोड्स आर रिमूव्ड by agitating them in the blender, by mixing them in a blender। जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो वायरल कोड्स हैं, जो इम्प्यूरिटीज हैं, वो एक्स्ट्रा रिमूव हो जाती है with the help of the blending। Okay, and the last case study is related to a child who is suffering from the sex chromosomal abnormality which occurs during the failure of the segregation of the chromatids। ठीक है, तो abnormality से ये क्वेश्चन आया गया है, that is the aneuploidy। ठीक है, तो आपके पास ये पूरा का पूरा कैरियोटाइप दे रखा है। तो इसमें आपके पास ये हाईलाइट कर रखा है, दैट इज 22 प्लस XO कंडीशन है इंडिविजुअल की, ठीक है। XO मतलब 1 इज मिसिंग मतलब लॉस ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है जी। तो फर्स्ट इज क्वेश्चन इज द आइडेंटिफाई द डिजीज फ्रॉम द गिवन कैरियोटाइप। तो हमें पता है 22 प्लस XO जो कंडीशन आती है वो आती है टर्नर्स सिंड्रोम में, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, लॉस ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, एनिपोलॉइडी, दैट इज मोनो मतलब सिंगल क्रोमोसोम इज मिसिंग, ठीक है जी। नेम द टाइप ऑफ द एनिपोलॉइडी अकर्स इन दिस डिजीज। वी नो दैट मोनोसोमी अकर्स इन दिस डिजीज, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट 44 प्लस XO क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम इज देयर, ठीक है। एक X मिसिंग होता है फीमेल्स में, जो डॉटर होती है उसमें एक X मिसिंग होता है। तो विच टाइप ऑफ एनिपोलॉइडी इज 2n-1, दैट इज द मोनोसोमी।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अकर इन द चाइल्ड। तो ये एबनॉर्मेलिटी कैसे आई, तो हमें पता है तो टर्नर सिंड्रोम, तो अगर हमारे पास एग है, एग की कंडीशन है 22 प्लस ओ, ठीक है, हैविंग द एलोसोम, फ्री एलोसोम इज देयर, फ्री एलोसोम इज देयर, एंड स्पर्म की जो कंडीशन आ जाती है नॉर्मल एक्स स्पर्म और द नॉर्मल एग विद द नॉर्मल एक्स, हैविंग द नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम इन द स्पर्म, ठीक है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी बन सकती है एक, कि हमारे पास जो डॉटर बनी इन स्पर्म और एग को फर्टिलाइज करके, दैट इज 22 प्लस एक्स ओ, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन की बात करें तो हमारे पास नॉर्मल एग हो सकता है, दैट इज 22 प्लस एक्स, एक नॉर्मल एग है, एंड एलोसोम फ्री स्पर्म हो सकता है, मतलब जो स्पर्म की कंडीशन है 22 प्लस ओ, एलोसोम फ्री। तो अगर हम इसकी कंडीशन की बात करें तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाती है टर्नर सिंड्रोम। तो ये दोनों कंडीशंस में पॉसिबल है कि टर्नर सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो दीज काइंड ऑफ केस स्टडीज हैव आस्क्ड इन योर प्रीवियस ईयर्स, एंड बहुत चांसेस है कि आपकी इस यूनिट के जो केस स्टडीज हैं वो आए, क्योंकि इस यूनिट की जो वेटेज है आपके एग्जाम में सबसे मैक्सिमम दैट इज ऑफ 20 मार्क्स आउट ऑफ 70 इन योर थ्योरी एग्जाम। ओके, तो नेक्स्ट हम एक लेक्चर में पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस, उसके रूल्स पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है जी। If you like this lecture, like, share and subscribe my channel, that is Prep Biology. Keep studying, keep learning. Thank you so much.